most people have an idea like you know what that is because it was something that you just ate. So it was something अभी आपने कुछ खाना खाया उसी के अंदर कोई चीज़ थी. यार मैं तो रोज़ कैरेट खाता हूँ, मैं तो फ्राइज़ खाता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता. पर एक दिन आपको वो जो सर का दर्द हुआ, आपको एक दिन नींद नहीं आई सही से, लेकिन वो हुई थी, लेकिन जो समथिंग आपने खाया था थोड़े दिनों पहले. फूड इज़ अ वेरी बिग कल्चरल थिंग हियर इन पाकिस्तान, राइट. आपको कोई बीमारी हुई, लेकिन वो क्यों हो रही है, आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपकी आज बैक में दर्द हो रही है, आपको पैर में दर्द हो रहा है या आपके हाथ में दर्द हो रहा है, वो क्यों हुआ. फर्स्ट थिंग व्हेन यू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, आपने अपना बेड़ा गर्क कर दिया. हम लोग बोलते हैं चलिए यार फ्रूट जूस, लेकिन मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस मैं किसी घर पे गया कल भी, उसने नहीं आपके लिए फ्रेश ऑरेंज, बोला नहीं ये जहर है. Hello and Assalamualaikum everyone, this is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of the Sapiens Experience podcast. Today's podcast is very important. Important kyun hai? We are going to talk about some major issues and some problems which me and you face. अगर आप किसी भी तरीके का food utilize करते हैं, ना सिर्फ developing countries में बल्कि developed countries में भी. So without any further delay, let me introduce you to the CEO of Infinite Wellness, Mr. Nick Juma. Sir, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, very good. Thank you for having me here. Thank you so much for joining us over here. And topic इतना sensitive है that we have been talking about this and many of our friends, doctors and people जिनको already knowledge है इस बारे में, वो इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं. So for normal people who are watching and listening us right now, उनके कुछ सवालात हैं and कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने खुद figure out की थी. And in fact, I went through a research myself जिस पे हमने जो है कुछ questions आपके लिए निकाले. So you can help us, solve those issues. Love to. सबसे पहले तो ये बताइए, how's your stay so far in Pakistan and how's Infinite Wellness doing? So far so good. I always enjoy my trip here. I'm here about every 3 months. 3 से 4 महीने में मैं शायद आता हूँ कि हमारी जो यहाँ पे जो लैब हमने इस्टेब्लिश की है, जो वेलनेस क्लिनिक इस्टेब्लिश की है for the people of Pakistan, for the purpose of bringing the awareness. It's here, it's doing well. Alhamdulillah, we have lots of doctors involved with us now, and we're bringing more and more awareness to more and more doctors in just the Karachi area right now. And now we have a lot of inquiries coming from Islamabad, Lahore, because if you got it done, the test, and then your cousins in Islamabad or somebody else, they want to get it done too. Because it's such an important thing, whether to what to eat, how to eat, and when to eat, and all these things are important, right? So Alhamdulillah, with our dietitians, our doctors. The doctors are overseas in America right there. We do telemedicine. हम लोग बात करते हैं उनसे डॉक्टर के साथ. So we've seen it's been about a year and a half, and we've seen a great progress. I mean, amazing progress. With the kind of patients they're coming to us, they're seeing a lot of difference in their bodies and their healthcare and stuff. They're getting a better quality of life. So Alhamdulillah, so far so good. Nick, आप ये बताइए कि you have been doing this for a while now, and of course अगर हम US की बात करें तो वहाँ पे लोगों को इसकी knowledge भी है, इसका idea भी है. What exactly are we talking about right now? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. Allergies का जो लफ्ज़ है वो अक्सर हमें देखने को सुनने को मिलता है, एंड फूड एलर्जीज़ जो है वो भी काफ़ी अब कॉमन हो चुका है. लेकिन एलर्जी जो है वो कभी कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं. नॉर्मल जो है हम बोलते हैं कि किसी को फ्लू हो गया, रैशेज़ हो गए, लेकिन कभी कभार ये एलर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होके जो है जानलेवा भी साबित हो सकती हैं. Absolutely. Tell us a little about this. So एलर्जीज जो है लेकिन वो तो एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, लेकिन जो सबको पता है. एलर्जी इज समथिंग दैट समथिंग अगर आपने अब ये खाया विदिन 30 सेकेंड्स और मिनट के अंदर आपको उसका रिएक्शन होगा. इधर इज गोना गेट रैशेस, आपको हाइव्स हो जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएगी, हार्ड टाइम ब्रीदिंग हो जाएगा. यू कैन इवन फेंट, and almost you can almost die too. And very, very rare cases, but if we have cases people have just died, literally eating something within seconds, within a minute rather, right? So that's an allergy. So most people have an idea what that is because it was something that you just ate. So it's something अभी आपने कुछ खाना खाया उसी के अंदर कोई चीज़ थी, तो वो सबको पता है. What we really actually give the awareness and educate the doctors even for this matter and the general public is on sensitivity. The sensitivity is something that it's a delayed reaction. आपने कुछ खाया, उसके 2 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, up to 2 months later you can have a reaction. Okay. That's how delayed it is rather So हम किसी को कहते हैं कि यार
आपको जो है अपने पोटैटोज़ नहीं खाने, आपने दूध नहीं पीना, या आपने कैरेट्स नहीं खाने। यार मैं तो रोज़ कैरेट खाता हूँ, मैं तो फ्राइज़ खाता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता। पर एक दिन आपको जो एक वो जो सर का दर्द हुआ, आपको एक दिन नींद नहीं आई सही से, लेकिन वो हुई थी, लेकिन जो समथिंग आपने खाया था थोड़े दिनों पहले, तो उसका जो रिएक्शन हुआ था, लेकिन वो कैन बी विद योर बैड स्लीप डे, आपको रात को नींद सही से नहीं आई, या आपको सर में दर्द हुआ, या आपको कब्जियत की आपको तकलीफ हो गई कुछ, लेकिन जो आपको रेस्टरूम नहीं आया सही से। इसके अलावा लेकिन आपकी एनर्जी लेवल्स, देयर इज़ अ बिग फैक्टर ऑफ एनर्जी लेवल्स, लेकिन जो आप दिन में कभी हम कहते हैं कि यार आज थकान सी लगी हुई है, यू नो, वो क्यों आती है? आप रोज़ तो नहीं थके होते हो, लेकिन तो वो सम फूड दैट यू हैव ईटन लाइक फ्यू डेज बैक, few weeks back, up to a month back, that has affected you in that. अभी हमें सर में दर्द करता है, हम बड़ी कम्युनिटी लेके गोली ले लेते हैं, हम कहते हैं भाई 10 मिनट बाद जो है लेकिन हम ठीक हो गया, और यू नेवर ट्राई टू फाइंड आउट कि ये क्यों हुआ, ये मुझे सर में दर्द क्यों हुआ था, और जब होता है हम गोली ले लेते हैं. इट्स वेरी कन्वीनियंट, इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर अस टू जस्ट ईजी ले लिया, कहानी ख़त्म हो गई. अच्छा, एक सिमिलर इंसिडेंट रिसेंटली आई एनकाउंटर्ड एज वेल विद वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज़ लिविंग इन डेलिस राइट नाउ, एंड जिस तरह आप मेंशन कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग दिस ओवर अ कॉल, एंड ही कंज्यूम्ड एक नट, एक ड्राई फ्रूट, एंड ये अपेरेंटली एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी ने एक नट कंज्यूम किया, बट ही ऑलमोस्ट चोक्ड. ही वेंट टू द इमरजेंसी, एंड वहाँ पे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा 3 घंटे की, क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने वो जो नट है वो पहले कंज्यूम नहीं किया था, लेकिन उसका कोई इस तरह का रिएक्शन था. ये एक सर्टेन क्वांटिटी से अबव अगर आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो वो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है. सो दैट दे केम टू नो आफ्टर दैट रिएक्शन पर्टिकुलरली, जिसके बाद अब उन्होंने वो एलर्जी टेस्ट किया एंड उनको कुछ और भी आइडेंटिफाई हुई चीज़ें. तो एलर्जी टेस्टिंग के हवाले से बात करें, ऑफ कोर्स यू आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब. थोड़ा सा मैं उसके बारे में ये बताना चाहूँगा लोगों को दैट वी हैव बीन डूइंग दिस एलर्जी टेस्टिंग ओवर हियर इन पाकिस्तान फॉर अ व्हाइल नाउ. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इनिशियली कितना डिफ़िकल्ट था या कितना ईजी था फॉर यू टू कन्विंस पीपल दैट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट लग्जरी, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ फॉर लाइफ. क्योंकि इनिशियली लोगों को ही लगता है कि ये एक लग्जूरियस थिंग है, या आप वैसे ही करा रहे होते हैं when you are tired or so. पाकिस्तान में लोगों का सबसे बड़ा एक जो एंटरटेनमेंट है वो है फूड. फील कह रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी होता है, चलें खाना खाने चलते हैं बाहर, ठीक है, हम यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, हम नानी घर गए, दादी घर गए, कज़न से घर पे गए, क्या पका है, खाना क्या है लेकिन. तो फूड इज़ अ वेरी बिग कल्चरल थिंग हियर इन पाकिस्तान, राइट, विच इज़ एवरी इन मोस्ट कंट्रीज देयर आर टू, लेकिन पर यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा है. लेकिन सो बेसिकली जैसे आपने नट्स की बात की, आपने नट्स जो है लेकिन बेसिकली देयर सपोज्ड टू बी वेरी गुड फॉर यू, वेरी हेल्दी फॉर यू. आपको वॉलनट्स ले लो, आलमंड्स ले लो, कैशूज ले लो, आप जो भी किस्म के नट्स लो, लेकिन दे हैव गुड प्रोटीन्स इन इट, दे यू सपोज्ड टू ईट देम, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सम नट्स कुड बी बैड फॉर यू. बट इट कुड बी, अगर मैंने एक वॉलनट खाया, आपने वॉलनट खाया, नॉट नेसेसरी मीन्स कि मेरी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट किया, आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया. आपकी बॉडी कैन ट्रूली लिटरली से कि मुझे वॉलनट से जो है नफरत है, पर आपको उस वक्त कुछ रिएक्शन नहीं हुआ. और अब जब 2 घंटे बाद, या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, हफ्ते बाद, आप जब घर में आपको एक दिन नींद नहीं सही से आई, लेकिन या आपको कुछ पेन हुआ, लेकिन आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई आपके कहीं पे, लेकिन बॉडी के अंदर, और यू हैड नो आइडिया लाइक बिकॉज ऑफ दैट वॉलनट रादर. आपने क्या है, वही अपने दवाइयाँ खाई, सब कुछ किया, राइट, और कुछ नहीं किया आपने. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि हम कहते हैं कि हम हेल्दी फूड खाते हैं. व्हाट इज़ हेल्दी? हेल्दी क्या है? लेकिन अगर जो टैग के ऊपर लिखा है वो हेल्दी है, मीन्स कि एवरीबॉडीज बॉडी इज़ डिफरेंट, योर बॉडी इज़ डिफरेंट, माई बॉडी इज़ डिफरेंट. अगर 5 आदमी अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक डाइट करना, तो अगर आप एग्जैक्ट सेम वेट से, एग्जैक्ट सेम टाइमिंग से, और सब कुछ एग्जैक्टली सेम करोगे, सेम खाना खाओगे, सब कुछ खाओगे, यू विल सी द डिफरेंस इन 2 people, but the other 3 people will not see a difference, or maybe 3 will see, the other 2 will not see a difference. क्योंकि उनकी बॉडी ने उस हेल्दी फूड को एक्सेप्ट किया ही नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो टू वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड, राइट. हम जिम भी जाते हैं, लेकिन हम जाके 2-2 घंटा जिम कर रहे होते हैं, आपको सिर्फ 30 मिनट्स की जिम की ज़रूरत है. अगर आपको पता हो कि सही ट्रेनर आपका जो है, उसने आपको बताया कि आपने जो डम्बल्स उठाने हैं वो ऐसे उठाने हैं, ये आपको एक्सरसाइज करनी ऐसे करनी है, लेकिन पॉस्चर है आपका, एक आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स वेदर, राइट. अगर आप गलत कर रहे होंगे तो आप 2 घंटे बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, और आप अगर सही करोगे तो 20 से 25 मिनट, तो मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर यू विल सी रिजल्ट्स मच फास्टर. सेम थिंग हम डाइट करते हैं, हमने बहुत दफ़ा सुना होगा, यार मैं इतना डाइट करती हूँ, घास फूस खाती हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, वेट भी कमी नहीं हो रहा, कभी बढ़ भी जा रहा है, लेकिन नींद भी मेरी सही नहीं है, मेरा स्किन ख़राब हो रही है, मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन मुझे थकन लगी होती है सारा वक्त. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि अगर आप इवन सैलड्स भी खा रहे हो, तो सैलड्स के अंदर आपके जो कैरेट्स हैं, आपकी लेटस है, आपकी एनीथिंग एल्स, एनी ड्रेसिंग दैट यू आर पुटिंग इन,
are you sensitive to those one of those foods? It's very very important rather like so हम जो हमारे लिए जो बेसिकली ये जो टेस्ट है लेकिन वो आपको एग्जैक्टली बता देगा लेकिन कि आप जो ये 10 हेल्दी फूड खा रहे हो उसमें से आपने ये 3 तो खाने ही नहीं है जी, क्योंकि ये 3 आपकी बॉडी के लिए जहर है इस वक्त। वो कहते हैं लगे मैंने ग्लूटेन निकाल दिया, यानी ब्रेड चावल निकाल दिया, मैंने दही निकाल दिया, दूध निकाल दिया, मैंने चीनी निकाल दी, मैं खाऊं क्या खाएं हम? तो भाई दिस इज़ वाई वी हैव डाइटिशियंस, दे आर रजिस्टर्ड सर्टिफाइड डाइटिशियंस, दे विल गिव यू द गाइडेंस and how to eat, what to eat, when to eat and how much to eat. It's very important. अच्छा निक, इनिशियली हमने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया था कि क्रॉस कंटामिनेशन और जेनेटिक जो फूड को ऑल्टर किया जा रहा है उसकी वजह से काफ़ी नई, इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ें थी वो लोग पहले विटनेस नहीं कहते थे जो अब विटनेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी इलनेसेस क्रिएट हो रही हैं। आप ये जो एलर्जिक रिएक्शन जिनके बारे में बात कर रहे थे वो भी चेंज होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। सो व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन एलर्जीज़ या जो बीमारियां हैं वो आपने आइडेंटिफाई की हैं आजकल टेस्ट करते हुए? सो इस वक्त यूएस के अंदर हमने 30,000 पेशेंट्स का टेस्ट किया है ओके राइट नाउ इन लास्ट 5 years। और पाकिस्तान का हमारा मकसद ही ये था लेकिन कि ताकि हम पाकिस्तान में भी ये चीज़ लेके आएँ कि यहाँ पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ADHD, माइग्रेन्स, हार्ट डिजीज़, दीज आर ऑल फुल लाइक यहाँ पे more than 50% ऑफ योर पॉपुलेशन इज़ ऑलमोस्ट डायबिटिक और प्री डायबिटिक राइट। और यूएस के अंदर भी ये चीज़ चल रही है। तो खाने जैसे आपने बताया कि इन लोग मॉडिफाइड कर रहे हैं खानों को और खानों में लोगों को पता नहीं चल रहा। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट दे आर ईटिंग, वेदर very few I would say less than 10%, 5%, 7% maybe know exactly what to eat, and even then again they don't know the sensitive part of it. So the awareness is so much out there we still need to do a lot of awareness from doctors to dietitians to common people rather right. So basically जो आप जो खाना खा रहे होते हैं it's very important to know कि वो कहाँ पे। अब बेस्ट जो आपकी ये चीज़ है ना कि आप फ्रेश खाना खाएं। आप जो आपका जो खाना होता है half the food ऐसे अपने कुछ एक प्लेट में के खाना खाया, half of that should be uncooked food. So वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उस टाइप के आपके बेसिकली अगर वो खाते हो तो दूसरा हाफ जो है आप थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा खा लें, इट्स गुड फॉर यू बट जेनेटिकली मॉडिफाइड एनीथिंग जो है आपने पैकेट में से खोल के खाया, देयर हैज इश्यूज। ठीक है। अच्छा निक, एक इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि वी हैव सीन कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है जो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फूड जिसको हम टर्म यूज़ करते हैं यूएस में या यूके के अंदर, दैट इज़ कंपैरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट अफोर्डेबल फॉर अ कॉमन मैन टू गेट दैट। तो इसी वजह से हम इन फूड्स की तरफ जाते हैं। तो इसके ऊपर भी बताइए कि इज़ इट वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से एलर्जीज़ जो है बढ़ रही हैं, या इज़ इट समथिंग विद इन आवर सेल्व्स कि हम कोई बहुत ही अनहेल्दी फूड अब यूटिलाइज़ कर रहे हैं जो शायद पहले नहीं करते थे? 2-3 चीज़ें हैं इसके लिए, लेकिन देखिए पहले अवेयरनेस नहीं थी राइट, नो लेकिन अगर आपको एलर्जी भी थी, कोई किसी एलर्जी से मर भी गया लेकिन तो हम कहते हमें पता नहीं क्या हुआ। आज से 40-50 साल पहले जब होते थे, लेकिन अब तो अवेयरनेस जो आ गई है तो हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर बता सकता है कि भाई आपको कोई एलर्जी थी, आपकी कोई बॉडी के अंदर कोई एलर्जन जैसा गया लेकिन जिसकी वजह से आपको रिएक्शन हुआ और आपकी उससे डेथ हो गई, आपको जो भी आपको डिजीज़ हुई है जो भी हुआ राइट। तो मेरे हिसाब से ऑफकोर्स लेकिन जो हमारे खाने हैं वो पहले ऐसे खाने तो थे नहीं। इस वक्त जो खाने आ रहे हैं लेकिन दे आर सो मच जेनेटिकली मॉडिफाइड राइट। हर चीज़ के अंदर लेकिन मिलावट है, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने हार्मोन्स डाले हुए हैं। लेकिन इवन यूएस के अंदर यहाँ पे भी आप देखें यूएस के अंदर फ्रूट्स जो है आपको रियल फ्रूट मिलता ही नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ रियल फ्रूट रादर लेकिन क्योंकि वो हर चीज़ वो इतनी बड़ी है क्योंकि और इतनी वो इट्स तेज़ी से ग्रो की भी है लेकिन तो उसके अंदर कहाँ से आपको मिलेगा वो जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ नहीं है, ज़ाहिर सी बात नहीं है। तो अब उसका ट्रेंड यहाँ पे भी आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो गई है, आपकी ऑलमोस्ट 250 मिलियन की पॉपुलेशन यहाँ पे भी हो गई है। लेकिन तो उन्होंने भी जो है जो चीज़ें आ रही है भी ऐसा ऐसा यहाँ पे, लेकिन वो भी सेम हो रहा है, मैस प्रोडक्शन में बन रही है, फास्ट बन रही है, लेकिन तो ऑब्वियसली उसके रिएक्शंस तो होंगे। तो रीज़न वी सी मोर रिएक्शंस राइट नाउ आई बिलीव लेकिन इज़ बिकॉज देयर इज लिटिल मोर अवेयरनेस लेकिन पीपल कैन सी लेकिन ये एलर्जी है, इसका एक रिएक्शन हो रहा है लेकिन बट स्टिल लॉट ऑफ दिस सेंसिटिविटीज लेकिन गो अननोटिस्ड because people have no idea because it didn't happen right away. आपको कोई बीमारी हुई है लेकिन वो क्यों हो रही है, आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके आज बैक में दर्द हो रही है, आपको पैर में दर्द हो रहा है या आपके हाथ में दर्द हो रहा है, वो क्यों हुआ? आपने बड़ी कन्वेंशनल गोली खा लेते हैं ना हम लोग। तो ये चीज़ें बिकॉज ऑफ सेंसिटिव होती हैं फूड एलर्जी की, ये सेंसिटिव होती है लेकिन जिसकी वजह से आपको होता है लेकिन मगर हम लोग उसको ओवरलुक कर जाते हैं। ट्रू। सो इट्स देयर बट पीपल जस्ट डोंट नो इट। So once you do the test, once you realize that there are certain foods that you have to take out,
within days, not even weeks, within days, like you will find out कि आपके जो sleep है उसमें better आ गया है, आपकी energy levels better हो गई हैं, आपकी skin better लगेगी, आपका hair fall definitely will be less. आपका One of the weight major issues faced by people these yes days. exactly, and weight is big time you will see the difference. आप सिर्फ एक टेस्ट कराने के बाद आप जो हमारी डाइटिशियन आपको जो एक गाइडेंस देगी वो आपने फॉलो करनी है. अब वही मैंने बस पहले सब बताया ना कि जिस तरह से बंदा कहेगा लेकिन यार मैंने ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं खाना, मैं जीऊँ कि नहीं जीऊँ, मैं मरी जाऊँ, इससे अच्छा मैं क्या करूँ, एक ज़िंदगी मिली खा लो. पर यू डोंट रियलाइज द क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हेन यू ग्रो ओल्डर. आज आप इतनी मेहनत कर रहे हो आप थोड़ा पैसा कमा रहे हो कि आपके पास क्या है जब ओल्ड एज में आपको एक अच्छी आप लाइफ गुजारो, राइट, वो क्या लाइफ होगी जब तक हेल्थी नहीं होगी. तो इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ टुडे यू विल सी द फ्रूट ऑफ इट टुमारो व्हेन यू ग्रो ओल्डर, राइट. सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको पता करना कि कौन से खाने हैं जो आपके लिए ख़राब हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं मैंने से कहना कि आप यू हैव टू वर्क स्मार्ट. तो स्मार्ट में क्या होता है कि आपने बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करनी है, आपने बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है. Basically you need to find out which foods are actually your enemy, which are healthy but not healthy for you, and then you just avoid that. सबसे बड़ी बात है कि यार मैं इसको कब तक अवॉइड करूँ. 4 months. You avoid it for 4 months. After 4 months, what you do is basically we reintroduce that food to you by doing another test rather. आपने टेस्ट करवाया, आपको उस वक्त आ जाएगा कि वो जो आपको कैरेट्स आए थे या आपको ब्रोकली आई थी या चिकन आया था, एग वाइट आया था, एग योक आया था, या कोई आपकी लेंटल्स आए थे, कोई आपको ग्लूटेन आया था, ब्रेड आई थी, जो भी आया था आपका, वो आप देखेंगे वो रेड से येलो में या फिर आपके ग्रीन में आ गया कि नाउ यू कैन इंट्रोड्यूस बैक टू योर बॉडी बिकॉज एवरी 4 months योर बॉडी चेंजेस, राइट. आपका ब्लड फ्लो जो है वो पूरा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन हो जाता है. तो बेसिकली आपको करना ये है कि वंस यू डू द टेस्ट 4 months आपने वो चीज़ को अवॉइड करना है. हमारी जो डाइटिशियन है दे गिव यू फुल गाइडेंस ऑन इट, दे गिव यू फुल सपोर्ट ऑन इट. द प्राइस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश वेदर. लेकिन हमारा ये नहीं है कि भाई आपको एक प्राइस चार्ज की रिपोर्ट दे दी खुदा हाफिज़, नहीं. वी वांट टू मेक श्योर फॉलो अप सबसे इम्पोर्टेंट, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट एंड गाइडेंस. ठीक है, आप रिपोर्ट लेके क्या करोगे, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर बोलता है आपका ये आपका लिपिड इतना हो गया है, आपका A1C इतना हो गया, आपका थायराइड इतना है, आप घबरा के चीज़ें फ़ौरन दवाएँ लेना शुरू कर देते हो. उसकी दवाइयों से कुछ नहीं, दवाएँ होंगी लेकिन उसको आपको चाहिए, लेकिन मगर न्यूट्रिशन इज़ द की. अगर अपनी डाइट सही करेंगे, अपनी स्लीप सही करेंगे, अपना स्ट्रेस लेवल सही रखेंगे, थोड़ी सी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ एक्सरसाइज करेंगे, यू विल सी द डिफरेंस. You will see how your body transforms into something that you've never seen. अच्छा, आपने थोड़ा टेस्ट के बारे में बात की एंड आपने बताया भी कि ये जो है आप फॉलो अप भी कर रहे होते हैं. अगर इसको एक बहुत ही शॉर्ट वे में समझना हम चाहें तो हाउ डज़ दिस वर्क. आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है या कोई अगर इंडिविजुअल है वो किसी किस्म की एलर्जी फेस कर रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए. देखिए हमारा एक प्रोसेस है विच वी टेक वेरी सीरियसली. हमारा एक प्रोटोकॉल है बेसिकली कि जब भी आप कहीं हमारी कोई ऐड देखते हो या आप हमारे पास आते हो, किसी डॉक्टर ने आपको रेफ़र किया है या किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया है तो हम सबसे पहले तो आपको एक 30 minutes की कंसल्टेशन देते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री. यू डोंट हैव टू बी यू आर नॉट obliged टू डू एनीथिंग अदर आपको कोई पैसे नहीं लेने हैं, आपको कुछ देना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपने सीखना है, समझना है कि है क्या. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, आपकी जो एक इन्फ्लेमेशन है या आपके सिम्टम्स है या आपको इश्यूज़ हैं कि वाई डू यू वांट टू डू दिस टेस्ट, राइट. तो हम समझते हैं, पहले आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं, आपके पेरेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं किस तरह से ये टेस्ट आपको हेल्प करेगा. ठीक है ना, या आपको नहीं करेगा, आपके लिए शायद नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी डाइट कर लें, थोड़ा ये कर लें. कि हमारा ये मकसद नहीं है कि आपको बस हर एक को टेस्ट देना, लेकिन पर टेस्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट क्योंकि आप अगर कोई इन्फ्लेमेशन जो हो रही है, लेकिन हम जब टेस्ट करते हैं तो बेसिकली आफ्टर दिस 30-minute कंसल्टेशन हम आपको जो है, अगर इफ़ यू एग्री टू डू द टेस्ट, हमारे पास जो नर्स होती है वो वी टेक ब्लड. सो बेसिकली इस 3 10 ml वायल्स ऑफ ब्लड, उसको हम लोग स्पिन करते हैं और उसके अंदर से हम लोग 10 ml वायल का सीरम निकालते हैं. तो सीरम इज समथिंग दैट दैट्स ट्रांसपोर्टेड टू US. एवरीथिंग इज डन इन US, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं. ऑल आवर टेस्ट इज डन इन US. Yes, all the tests are done in US, and now we have a new technology that we just introduced. Within 2 weeks it'll be out, which you will have a card. So somebody living in Karachi, or somebody living in Islamabad, because we get a lot of calls from different cities. We only have a center in Karachi. अब वो कराची कहाँ पे आएंगे, कब आएंगे, कैसे होगा, राइट. तो हमने एक टेक्नोलॉजी निकाली जो हमने US के अंदर इंट्रोड्यूस की है लास्ट about 4 months ago, and is going very well, for our overseas patients. So उसमें क्या होता है, basically it's a 15 circles that you just pick your finger and you drop 15 circles of the blood rather on that card. एंड आप इस्लामाबाद के घर में कर लो, आप जेल में बैठे हो, आप सियालकोट में बैठे हो, आप लाहौर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपको किट आपके घर पे आ जाएगी.
आपने घर से वहाँ से वो टिप किट के अंदर जो है ना आपने प्रिक किया, आपने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ी सही से, उसको बंद किया, पैकेट में डाला, मेल कर दिया, सीधा हमें यूएस में लेगी वो। तो राइट नाउ लाइक एन सर वी आर इन लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज लाइक एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि वहाँ से सब जगह से ब्लड नहीं आ सकता था, तो हम लोगों ने ये न्यू टेक्नोलॉजी निकाली। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इससे आई गेस वी कैन केटर मोर नंबर ऑफ पीपल इनफैक्ट जो शायद यहाँ पे जैसा आप मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सकती है। यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी आपकी बात हुई है कुछ लोगों से कुछ अर्सा पहले, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि देखें दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन इन यूएसए एंड लोगों को वहाँ पे इंश्योरेंसेस भी है जिसकी वजह से उनको फैसिलिटेशन मिलती है। सो इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन डू स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि एलर्जी जो है वो हर एक को हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कोई बहुत ही अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले को हो, वो किसी लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले को भी हो सकती हैं। तो उस इनकम ग्रुप जो है, जो ब्रैकेट है, उसको अगर केटर किया जाए तो उस सिलसिले में आपकी कोई बात हुई है या इसको आप आगे इन फ्यूचर एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव एंटर्ड इन पाकिस्तान मार्केट, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपने डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेंगी। अब देखें पूरी दुनिया में मैं कहीं भी जा सकता था, पाकिस्तान क्यों? क्योंकि तो अपना वतन है। मैं पाकिस्तान मैंने छोड़ा तकरीबन 37 साल पहले, 37 years ago I moved from here to US and I did my matric at right I was 16 years old. So बोलने का ये है लेकिन कि पाकिस्तान हमने क्यों चुना, जब हम मेरे सारे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं एवरीबडी से लगे यार बेवकूफ़ी कर रहे हो भाई, यहाँ कोई नहीं लेने वाला, ये सब यहाँ कोई समझते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। मतलब इट डजंट मैटर, हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा मकसद है किस तरह से अवेयरनेस लाना, किस तरह से लेकर लोगों को समझाना और किस तरह से उनको ये टेस्ट के लिए करवाना। तो जब हमने यहाँ पे बेसिकली लैब की तो उसका इक्विपमेंट बहुत हार्ड था यहाँ पे लाना, हमें चाइना से, हमें दुबई से, हमें यूएस से तो हमारा इक्विपमेंट आया ही नहीं। काफ़ी चीज़ें हमारी कस्टम में फंस गई, हमारे सप्लाईज़ जो हैं, हमारे जो सोल्यूशंस वगैरह हैं लेकिन वो नहीं आए। तो इट्स वेरी हार्ड टाइम फॉर मी टू गेट दिस थिंग डन इन 2 years। मुझे 1.5 से 2 साल लगे लेकिन पर मैंने लैब बना ली यहाँ पे। अब जब लैब बना ली लेकिन तो उसके बाद ऑफ कोर्स दिस वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल दैट कैन अफोर्ड द टेस्ट। ठीक है, इट्स नॉट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड द टेस्ट लेकिन बिकॉज इट्स लिटिल बिट हायर प्राइस व्हिच इज स्टिल चीपर देन यूएस, और हम यूएस ही भेज रहे हैं उसको। सो आई एम चार्जिंग लेस प्राइस लेकिन देन वी चार्ज इन यूएस लेकिन, बट हमारा गोल ये था कि हम जो सोल्यूशन यहाँ बनाएं, हम इसके जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे करें, लेकिन यहाँ पे हमारी लेबर कम होती है, तो ऑब्वियसली आई कैन सेल द टेस्ट हियर मच चीपर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। तो फॉर दैट रीज़न लेकिन हमने जो है हमारी जो टेस्ट ना बन सका यहाँ पे, टेस्ट हमने बना लिया और हमारा इक्विपमेंट और हमारे जो सोल्यूशन जो है जब भी आते हैं वो कस्टम में 1-1 महीने के लिए फंस जाते हैं। अब जो सोल्यूशन है भाई वो इज़ वेरी डेलिकेट राइट, इट हैज़ एक्सपायरेशन डेट ऑन इट। सो वो जब एक्सपायरेशन वहाँ से निकलता ही नहीं है, तो 2 or 3 times वी हैड दैट इशू। सो आई अप्रोच लेकिन सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन भी आप थोड़ा हमको हेल्प करें इस चीज़ के अंदर, ये वो सब कुछ। देन अगेन आई एम हियर फॉर 2 weeks 3 weeks राइट, व्हेन आई एम गॉन लेकिन थिंग्स गेट स्लो डाउन अगेन राइट देयर। सो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था लेकिन फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ की तरफ से, फ्रॉम लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब हैं लेकिन उनको हमने एक ईमेल की थी, एक लेटर भेजा था, उन्होंने बोला हम मुलाकात करेंगे आपसे। So we had good responses like but we weren't able to follow up that much like because of the shortage of time, because of course they're all busy right. But I would love to have them collaborate with us to have a lab like give us a grant where we can bring this test and be able to afford it like by everybody। ठीक है, कोई जो छोटा बच्चा है उसका क्या कसूर है, वो गरीब है तो वो सफ़र कर रहा है ना, एक कोई औरत है, कोई जो भी है, जो भी सफ़र कर रहा है चीज़ें से। हमारा गोल ये है कि उनको दवाइयाँ कम दें लेकिन और दवाइयाँ तो देनी पड़ती है लेकिन अगर दवाइयों के साथ उनको न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से उनको हम ठीक करें लेकिन। इनफैक्ट जो मेडिकल इंश्योरेंसेज हैं यहाँ पे, दे शुड ऐड दिस थिंग एज वेल इन देयर इंश्योरेंसेज एंड दिस कुड बी अ मेजर बूस्टर फॉर देम कि उनकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लोग ज़्यादा ले सकते हैं। एंड स्पेशली आप कोई ऐसी नीड क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से लोग ऑब्लाइज फील करते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ वैल्यू फॉर मनी है, तो लेटर ऑन अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरी होगी तो हम वो चीज़ करेंगे। क्योंकि देखें ना असल चीज़ क्या है लेकिन कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या चाह रही है कि आप कम से कम हॉस्पिटल जाओ, ठीक है ना। तो अगर आपकी न्यूट्रिशन सही होगी तो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा लेकिन तो यू वोंट गेट सिक एज मच अदर। अगर आप बीमार होंगे भी लगे तो इतने ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड लेकिन दैट्स व्हाट यूएस अंडरस्टैंड्स। जो यूएस की जो कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज है लेकिन और जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है, दे अंडरस्टूड दिस, वी टुक देम। लेकिन पहले वो इस चीज़ को पे नहीं करते थे, दे डिडंट एक्सेप्ट इट। After having to do 500 studies other patients of elderly and we showed them कि आज इन्होंने जो है 1 साल में जो उनकी जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई है लेकिन वो मुश्किल से 1 या 2 दफ़ा हुई है, जो उनकी पिछले 4 साल की हिस्ट्री थी उसके अंदर उन्होंने लेकिन डिक्लाइन किया 50%।
of medicine and of going to hospital. Okay. So the government realized like, you know what, this is good for us. अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ लेकिन और आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो बिल तो मैंने देना है ना. तो मेरा गोल क्या है लेकिन कि आप हॉस्पिटल ना जाओ. I'd rather pay a small amount for a lab to do the test and give them the guidance so they can eat better, they can feel better and not be able to go to hospital, rather like, you know, not end up in hospital. So that's what we did in US, and hopefully inshallah like, you know, struggle chal rahi hai yahan pe. It's not been easy for us, but we're trying. We make sure like, you know, that हमको government थोड़ा सा help करे और हम लोगों को जो यहाँ के जो doctors हैं especially like, you know, we have had some really great doctors. I don't know if I can say the names or not, but नहीं, of course. they're all been very very helpful. Dr. Wasim Jafri हैं हमारे gastrologist हैं like, you know, South City Hospital के अंदर, और Dr. अफजाल लोधी हैं like, you know, हमारे dermatologist हैं like, you know, they see the difference. They saw the difference in their patients. और वो patients अगर हमारे पास अगर एक patient डॉक्टर भेजता है तो हमारे पास वो patient 10 patient को हमारे पास भेजता है. मतलब कि अगर आप डॉक्टर के थ्रू आए थे पर आपके थ्रू आप मुझे 10 भेजोगे कि आपको इतना फ़ायदा हुआ. अपने दोस्त को of course, जो referral जो आपके पास आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है that you are producing results. This is the first podcast we're doing in Pakistan. आपके साथ मैंने आपके देखे आपको मुझे अच्छा लगा आपका, लेकिन I think information जानी चाहिए लोगों को, but we don't do any advertisement. We have zero advertisement, like, you know, it's all word of mouth. Our business is rather like, you know, I don't believe in like, you know, spending money on billboards and marketing and everything like that. मैं rather आपको give you discount करके मैं आपको सही कर दूँ लगे ताकि आप जो 10 लोगों को बता दो. Yeah. That's all we do rather. अच्छा Nick, I really wanted to know the number of tests you are managing, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि US में भी. Of course, you are running a successful operation in USA. So how many people are behind this testing services, and आपकी जो team है, आपकी जो labs हैं, वो कितने स्केल पे कहाँ काम कर रही हैं? So basically we have our headquarters in Atlanta, Georgia, and वहाँ पे हमारे पास एक 35 लोगों की टीम है जिसके अंदर लैब टेक्नीशियंस हैं, PhDs हैं, लैब डायरेक्टर्स हैं, लैब मेडिकल डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं उसके अंदर. फिर हमारी एडमिन की टीम है बेसिकली लाइक, यू नो, हमारी बिलिंग की टीम है. और इसके अलावा हमने जो डॉक्टर्स से जो हमने किया है, जस्ट लाइक आई सेड, लाइक, यू नो, राइट नाउ टू वी हैव नो सेल्स पीपल. I started this 5 years ago, like, you know, with 5 doctors, and उसमें से मैं जब 50 को मिला था तो उन्होंने बोला 45 ने बोला कि यार नहीं चलेगा, 5 ने बोला कि चलो हम ट्राई करते हैं. From that 5 we are 1800 doctors good right now. We're strong with 1800 doctors in all over US, and we do about close to 70 to 80 patients a day testing in Pakistan right now. And overall, like, you know, we have done about 30,000 patients altogether in last 4.5 years, which out of the 30,000 we did about 15,000 just in 2024, and we're projected to do 20,000 patients just in 2025, if not more. Now we are growing into different countries, just like हमने पाकिस्तान में लेके आए 1.5 साल पहले इसको, almost 2 years ago. We are in Dubai right now. We are in Saudi Arabia. We're going to be in Doha. We are in Colombia, South America. We're in Canada. And we have 15 other countries that we're going to be expanding to, like, you know, this year, because we have that demand. We have doctors calling us from Thailand, from Japan. Like there's a doctor in Japan, like, you know, that's very very interested. That's all he does. He does diabetes, like, you know, with nutrition rather. He does not believe in medicine rather, like, you know. So we have doctors in Australia, Sydney. We have New Zealand rather. You know, we have all these countries that we have sent the patients from, like, you know, the doctors have sent us the patients from. So now we're doing, like, you know, we're seeing the volume, and inshallah we'll grow into all these countries. And so far it's been nothing but blessing. It's good work is going on. That's all. Achha, Nick, the people who are watching us right now and in fact listening us as well, there are certain investment opportunities as well in different businesses. तो इस हवाले से बताएं. Of course, you are businessman yourself, so you might have seen any kind of potential in this business as well. तो आपके जैसे लोग जो इसके अंदर as opportunity create करना चाहते हैं अपने लिए, वो क्या कर सकते हैं? And is it too late to be part of this venture? It's never too late, right? It's never too late, rather, like, you know. But right now I'm a whole and sole owner rather. Basically, I don't have any investors in it right now, but just about now we are started raising funds rather, like, you know, with investors. We have different opportunities in Dubai. We have different opportunities in different countries, like, you know, that you become the regional franchise owner rather, like, you know, for, I wouldn't say a franchise, like, you know, but regional partner. You know, because देखें हर चीज़ जो है उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजिक पार्टनर चाहिए होता है. अगर मैं हर चीज़ चलाऊँगा अपनी तरफ से अकेले से, like, you know, तो मेरे पास मैनेजर्स होंगे, मेरे पास दूसरे जो लोग होंगे, ऑपरेशंस के लोग होंगे, like, you know. But it's better to have a partner who can say, okay, मैं पाकिस्तान का जो है मैं जिम्मेदारी में लेता हूँ, ठीक है ना. My goal is to support them, like, you know, with all the marketing materials, all the research, the development, everything that goes on in US.
So US is the biggest place for healthcare, right? You know, that's the hub right there. अब US कोई चीज़ आती है तो that's a stamp like you know it's a good, ठीक है ना. और हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हमारी रीज़न जो है like you know growth की is because we've been there for 5 years. Every year आपका inspection होता है lab का, और we are like you know certified with COLA and certified with CLIA, which is the 2 highest certifications that you can have in America. 5 years में हमारे पास 5 inspections हुए हैं. We have 0 deficiencies. Average lab जो है वहाँ पे 82 और 87 का स्कोर लेके आती है. हमारे पास 100 out of 100 है like for 5 years. And these people, they come to your inspect your lab right there. They just give you a 1 week notice. You have your documents have to be perfect. Compliance के आपको पूरा सारी चीज़ें होनी चाहिए. And it's a 2-day inspection. तो हमारे पास 0 deficiencies है लेकिन इसके अंदर. So right now we are I can say very proudly like that we are the best in what we do right there. Even in America like there's about maybe 12 or 15 labs do what we do, but we are the top 3 right now. क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी टर्न अराउंड टाइम, कि जब आपका जो सैंपल आपके लैब में आया, एवरेज इंडस्ट्री हमारे अंदर है 7 to 10 business days. We do it in 3 to 5 business days. So we excel there rather like कस्टमर सर्विस में भी excel है like जो आपकी जो कॉस्टिंग जो प्राइसिंग है आपकी इसके अंदर like I said we just do doctor to doctor, we don't do B2C. हम कस्टमर को सीधा नहीं बेचते, सिर्फ हम डॉक्टर के थ्रू ही जाते हैं like तो if you want to order a test you have to go to a doctor and ask them like to order it for you, ठीक है. So overall in that way too like we have grown a lot rather. So overall मैं ये कहूँगा like investors के लिए like there's always an opportunity. Like I said, I don't have any partners right now, and right now only thing stopping us from scaling is manpower. And manpower जो है लेकिन अगर मैं जैसे मैंने बताया मैं पाकिस्तान में आता हूँ 2 महीने 3 महीने बाद, फिर मैं अगर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ता रह के 3 हफ्ते चला जाता हूँ यहाँ से, तो फिर क्या होगा. तो somebody has to guard it, right? Somebody has to. My people are excellent at that. They are good operators at that, और business development है एक वो ओनर की होती है लेकिन एक पार्टनर की होती है, लेकिन उसके अंदर आपको डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको लर्न करना होता है. You have to have passion for it too, right? So we have that opportunity right now for a lot of different countries rather like Achha, Nick, how much you've invested in this project particularly, क्योंकि you have mentioned that you have scientists, doctors and people associated, and किसी भी इस तरह के business के लिए research is one of the key thing to be done. Process के बारे में बताएं. So basically like I started this in 2018 and it just came out of I hired a couple of PhDs and a few scientists, and then they tried to do the experiment rather, it did not work. 2019 I let them go. I hired a whole new team, and then in 2020 finally like with my new team like I was able to crack it rather. Exactly what the allergens are like what the solutions are like how to do the allergy testing, how to do the sensitivity testing and everything. And of course आपको पता है scientist cheap नहीं है US के अंदर. एक PhD बंदा आपको सस्ता नहीं मिलता like when you have a team of 10 to 12 people at over 6 figures in salaries rather like and have to keep them for a year 2 years with no revenue because कुछ है ही नहीं चीज़ ना. अभी तो कोई चीज़ बनी नहीं है, तो बनाने के लिए तो I had मुझे ये था कि बनेगी चीज़ अच्छी होगी लेकिन because it's out there, right? So we did it, and this might be a potential opportunity for other people as well, because the main thing you have already done. It's done. The main expense has been done. So जो valuation हम company के लगा रहे हैं लेकिन और जो हम आपको लगाते हैं वो at this point I would say कि you have a very good chance if the things go right rather like you 5 times your money in 3 to 5 years. Oh, wow. So every year you can double your money rather like opportunity इतनी बड़ी है, and there's not many people doing it, and whoever's doing it like they're not focusing on it. हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फूड एलर्जी पे है. वी डू नॉट डू एनीथिंग एल्स. सो आपकी जो दूसरी लैब्स हैं लेकिन दे डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. वो ब्लड का भी कर रहे होते हैं, यूरिन का भी कर रहे होते हैं लेकिन दे डू अ लॉट ऑफ जेनेटिक स्टफ अदर. ऑल वी डू इज फूड एलर्जी. सो वी हैव द अपॉर्चुनिटी लाइक टू बी द लीडर इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री अदर. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन इन पाकिस्तान राइट नाउ, कि अभी वो लोग जो शायद अभी टेस्ट नहीं कराएं लेकिन घर के अंदर ही रह के वो शायद कोई इस तरह की चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हो कि किस तरह वो इन एलर्जीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, आने वाली एलर्जीज़ भी, तो उसकी क्या रेमेडीज़ हैं या वो किस तरह कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये जो है बेसिकली आपको मैं ये कहता हूँ कि देखें आपने टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं कराना. until unless you going through some extreme issues or anything like that, आप टेस्ट करवाएं because it's going to really help you. 87 to 90% people have gotten better about it rather like जिसको अगर 100 में से 87 to 90 people, वो जो 10 12 13 लोगों ने नहीं ठीक हुए उन्होंने फॉलो नहीं किया. उन्होंने लाइक उस चीज़ को बोला यार मैं तो ये नहीं कर सकता क्योंकि इट्स हार्ड, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एवरीवेयर्स कप ऑफ टी देयर. मगर अगर उसको फॉलो करोगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स.
So basically क्योंकि like काफ़ी लोग आपकी जो फ्री कंसल्टेशन है Yeah. उसके बाद भी एक अवेल अपॉर्चुनिटी करके भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते absolutely 90% of the times when we do a free consultation they do the test. So they understand the value, they understand the importance, they understand like कि इसकी value क्या है, right? So they definitely go for it. Like sometimes, very seldom, if we have somebody like that cannot afford the test, out of humanity, like we say, okay, we can give them an extra discount to do something if it's a genuine case. Something I can relate to. Few cases that I can think of right now, they were extreme. Depend with it was related to some kids, some very elderly person, rather like So we sometimes let go of the price. We don't look at the price because I say, okay, don't worry about it. We're going to do the test. We want to make sure you feel better. Of course, we're going to do it for everybody. Rather like we do make certain choices like इसमें हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. So overall, yeah, that's what we had. अच्छा. एंड टॉकिंग अबाउट रेमेडीज़, अगर घर पे कोई करना चाहे तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें जो कि अवॉइड करनी चाहिए आजकल के टाइम में पाकिस्तान में रहते हुए? ये सबसे बड़ी बात है, देखें कि हमने बचपन से सुना है मिल्क, दूध पिए, दूध में जो है कैल्शियम है, आपका विटामिन डी है, आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग होगी, आपको ताकत आएगी, सारा कुछ होगा. माएँ जो है फोर्स करके बच्चों को दूध पिला रही होती हैं दूध इज नॉट एनी फॉर्म ऑफ मिल्क, क्योंकि यहाँ पे देखा चाहे वो पाउडर फॉर्म हो, बॉटल्ड मिल्क हो या टेट्रा पैक हो, any form of milk that milk is not good for you. I'm sorry to say, a lot of people, it's going to be a shock. एक बड़ी स्टेटमेंट है. It's going to be very shocking for a lot of people, but milk is supposed to be for उसकी जो बछड़ा होता है उसके लिए है. It's not for us, rather up to 6 months you can give the milk to the. We have seen people making fun of other people जो lactose intolerant होते हैं उनके लिए कि यार ये तुम्हें क्या चीज़ हो चुकी है, stop being like this. So if you really want milk, rather go for coconut milk, soy milk, almond milk, rather but not regular milk, rather right. So and we have seen enough researches, enough studies, enough cases to say that that milk is not the best thing for you, and that's not just milk, it's all dairy products. Cakes हो गया, आपकी cookies हो गई, आपकी anything that has dairy in it. अगर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को टेस्ट नहीं कराना है, बेशक ना कराएं, लेकिन इंटरलेस आपको जिसमें बताया कि आपको कोई अगर मेजर इशू है तो, अगर नहीं है तो ऑल आपने क्या करना है, सिर्फ आपने जो है ना मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट छोड़नी है. ग्लूटेन इज़ वेरी हार्ड. हमारे पास नान, रोटी, चावल के अलावा कुछ है ही नहीं. चावल में ग्लूटेन नहीं है, लेकिन अगर नान, रोटी और जो किस्म की आपकी ब्रेड्स हैं, लेकिन जो कार्ब्स हैं वो आपको छोड़नी है. राइस आपको छोड़ना होगा लेकिन थोड़ा सा. और इसके अलावा आपको जो है शुगर जो है सबसे बड़ा किलर. इस वक्त जो पाकिस्तान में बैठा हुआ देख रहा है, आपने उनका खाना ही बंद कर दिया. क्योंकि आप देखें यहाँ पे चाय का क्या है, लेकिन राइट यहाँ पे हर बंदा दिन में 2, 3, 4, 5, 6, 10 बार भी चाय मैंने देखी है. ओवर $1 बिलियन की कंजम्पशन है हमारी चाय की, इंपोर्ट की. तो आपको पता है चाय कितनी अच्छी चीज़ है. It's such a good thing for your immune system and everything as long as it's drank black, without milk, without sugar. The moment you put sugar in it and milk in it, आपने उसको किल कर दिया, उसने जहर बना दिया. And we do the first thing in the morning, what we do is we do drink tea with it, right? सुबह उठते साथ यार चाय तो दे दो. आपने चाय सर के दर्द के बेहतरीन हल. First thing when you drink tea in the morning, आपने अपना बेड़ा गर्क कर दिया. दिन की शुरुआत ही आपने अच्छी नहीं की है. Exactly. आप कोकोनट वाटर पिए, आप हर वाटर पिए, लेमन डालें, इसके अंदर सिनेमन डाल दें, लेकिन अदरक डाल दें, जिंजर डाल दें, लेकिन जो भी करें, लेकिन मगर आपने दूध, चीनी और चाय को मिक्स नहीं करना. Black tea पिए, ज़बरदस्त for you, good for your immune system, lots of antioxidants in it, like and everything. Black tea, not black coffee, right? Black coffee too, same thing. Okay. Black coffee, black tea. लेकिन excess में नहीं होनी चाहिए. Excess नहीं. 2 cups like no more than after 12 p.m. आप दोपहर को 12 बजे के बाद ना पिए, क्योंकि उसको ना affect you with your caffeine and everything, right? Okay. रात को आपको सोने में, अब यहाँ पे कराची में कोई 12 बजे से 2 बजे पहले सोता नहीं है यहाँ पे, लेकिन I sleep early, I sleep 9:30, so I don't drink anything after 12 o'clock. Like I'm used to getting up early at 5 o'clock. So it's a different routine that I have, and जो fasting है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. Like I said again, अगर आपको extreme issues हैं, you must do it, because this will help you, find out कि आप रोज़ ऐसी कोई चीज़ खा रहे हो जिसकी आपको वो ट्रिगर करती है उस चीज़ को, राइट. और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, तो just for young generation, for somebody who's healthy, no issues, no symptoms or no inflammation, दूध, आपका ग्लूटेन, ये जो रोटी, नान और ये सारी चीज़ें, ये है शुगर, इससे आप दूर हैं. और इसके अलावा जो है आपने जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि आपका जो आपका जो दिन का जो मील होता है, जो भी आप मील खाएं, सबसे पहले ट्राई करें थोड़ा सा सलाद खा लें, सैलड खा लें, थोड़ा सा फ्रूट खा लें, एंड एनी काइंड ऑफ फ्रूट, जितना भी मीठा फ्रूट हो. और अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारा एक चीज़ है ये, कि हम लोग फ्रूट जूस पीते हैं. हम लोग बोलते हैं अगर यार फ्रूट जूस, मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस
मैं किसी घर पे गया कल भी, उसने नहीं आपके लिए फ्रेश ऑरेंज, बोला नहीं ये जहर है। ऑरेंज जूस, हाँ क्यों? क्योंकि ऑरेंजेस आर गुड फॉर यू, एप्पल्स आर गुड फॉर यू, ऑल द फ्रूट्स आर गुड फॉर यू विद फाइबर। तो इफ़ यू ईट इट एज अ होल, आपने पूरा वो फ्रूट खाया, लेकिन तो उसका जो ख़राब जो चीज़ थी ना वो था उसका जूस, जो हम लोग कहते हैं कि अपने फाइबर के साथ खा ले चलो वो डिज़ॉल्व हो जाएगा। मगर हमने क्या किया, हमने जो अच्छी चीज़ थी सारी उसको निकाला और वो चीनी वाली चीज़ लिक्विड लिया और गड़क करके पी गए। और अगर फर्स्ट थिंग इन द ब्रेकफास्ट यू हैव ऑरेंज जूस और एप्पल जूस और एनीथिंग लाइक दैट, आपकी शुरुआत आपको शुगर लेवल जो इतना स्पाइक हो जाता है, आपको सारा दिन आपको थकन भी रहेगी, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, लेकिन नो योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू लूज वेट, लेकिन नो फंक्शन प्रॉपर्ली, लेकिन और आपको वो चीज़ आपकी रहेगी नहीं। अगर आप इसको छोड़ के देखें, आप कॉफ़ी ब्लैक पिए, आप टी ब्लैक पिए, लेकिन नो शुगर नहीं डालें, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉट दैट गुड ईदर, लेकिन नो वी प्रेफर लेकर कि आप अपनी आदत डालें लेकर सब चीज़ें करने की। सो हम एंटी एजिंग की बातें करते हैं। अब हम यहाँ पैदा हुए, ये हमारी डेथ है, 0-100, हम ऐसे भाग रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तानी स्पेशली तो बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं, लगे वो जल्दी से जल्दी मौत है, वो 40 में गिर जाते हैं, 50 में गिर जाते हैं, 60 में गिर जाते हैं, देखें हार्ट अटैक आ गया, वो उसको ये हो गया, वो बैठे बैठे स्ट्रोक आ गया, कुछ भी आ गया, क्योंकि अपने खाने ऐसे हैं, राइट। तो आपको बेसिकली आपके खाने जो है आपको कम करना है, ताकि आपकी जो एजिंग जो है वो स्लो हो जाए, हम फास्ट ना जाए, हमारी वो एजिंग की जो है लेकिन वो स्लो होगी। स्लो कैसे होगी? बेसिकली शुगर, ग्लूटेन और आपका ये जो चीज़ें हैं लेकिन आपने हटानी है बेसिकली, लाइक राइट। और ये ग्रेन्स लेकिन आपको जो है देखने हैं वो आपको नहीं खाने हैं। दूध, दही, आप कहते हैं यार दही तो मेरे इतना अच्छा है मेरे लिए, आप ग्रीक योगर्ट खाएं। ग्रीक योगर्ट के अंदर जो है वो चीज़ें नहीं है जो मिल्क के अंदर है, लेकिन सो इट विल हेल्प यू एक्चुअली लेकिन लुक बेटर। आपकी स्किन, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है फॉर वेट, स्किन, एनर्जी, एस्थेटिशियंस वगैरह का आप काम जो है वो कह रहे हैं कि आपको एस्थेटिशियन के देखिए वो बिल्कुल करें, लेकिन ना वो क्योंकि ये चीज़ आपको ओवरनाइट तो नहीं आएगी, दिस थिंग्स टेक टाइम अदर, लेकिन तो एस्थेटिशियन बिल्कुल अपना काम करें, बिल्कुल कोई मसला अच्छा, ये वाली चीज़ बड़ी कॉमन है क्योंकि लोग अक्सर जिम में जाते हैं एंड ईदर दे आर हैविंग देयर बिग डे या कोई इस तरह की चीज़ होती है एंड दे यूजुअली रेफर टू अ एक्ट्रेस और एक्टर कि जी हमें ये बनना है, हमारे पास ये टाइम पीरियड है, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो सिर्फ क्रीम लगाने से ये बाकी चीज़ों से नहीं होता, इट्स अबाउट द लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर मेंटेनिंग थ्रू आउट, जिसकी वजह से आपको उनकी जो फिजिक है वो अच्छी लग रही है या उनकी शक्ल अट्रैक्टिव लग रही है या ओवरऑल लुक जो है अपीलिंग लग रही है। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग दैट हेल्दी लाइफस्टाइल। हम लोग इंडिया के अंदर बहुत से ट्रेनर्स हैं लेकिन जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जो हमारे टेस्ट ऑर्डर करते हैं अभी इंडिया के अंदर, वो लोग बेसिकली आमिर खान जो आपने दंगल देखी होगी जी, उनका ट्रेन किया था, लेकिन जब उनका वेट बढ़ा था उनको 9 महीने लगे थे, लेकिन वो वेट गिराने के अंदर 9 months रह जाए। इफ़ यू वांटेड ही कुड डू द प्रोसीजर्स, वो सब करके वो फ़ौरन कर सकते थे, लेकिन मगर उसने कहा कि नहीं, मुझे न्यूट्रिशन से करनी, सो इट टेक्स टाइम। सो अगर आपको एस्थेटिक करने का इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप कराएं, लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन पर अगर आप थोड़ा आपको कम कराना होगा, आपको इतना नहीं चीज़ें होंगी ज़रूरत, लेकिन अगर आप सही से न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, अपनी डाइट पे ध्यान देंगे, लेकिन क्योंकि इट्स नॉट अबाउट लेकिन जस्ट आपकी स्किन, आपके इनसाइड आपका गट क्या बोल रहा है, आपको गट और ब्रेन का जो रिलेशन है लेकिन वो यही है ना बेसिकली, लेकिन कि गट जो है लेकिन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है लेकिन कि भाई आई एम फुल जी। अब वो जब आप सेंसिटिव खाने खा रहे होते हैं तो वो उसको गट को पता ही नहीं चलता, समझे कि आपका ये आपका गट है, ठीक है, आपका पेट है, ठीक है, अब इतने से खाने में आपका पेट भर जाना चाहिए, मगर आप जो खाने जो सेंसिटिव खा रहे होते हैं वो सब बाहर गिर रहा होता है, ये फुल ही नहीं हो रहा। हम इतने खा रहे हैं, सब कचरा यहाँ पे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वो जो कचरा हो रहा है लेकिन बेसिकली वो जा रहा है हमारे ब्लड के सिस्टम के अंदर, तो ये फुल नहीं हो रहा, तो आपको इन्फ्लेमेशन वगैरह सब वहीं से आ रही है। अगर आपको पता हो कि आपको कौन से खाने आपके लिए जो है सेंसिटिव है, उसको आप हटा दो, खाली ये खाओ, लिटरली लाइक आई हैव 1500 कैलोरी डाइट एंड लिटरली आई एम फुल, आई ईट वंस अ डे, लाइक मेरे 4 से 5 के बीच में लेकिन बिफोर सनसेट आई ईट एंड देन बाकी मेरी फास्टिंग होती है, मेरी फास्टिंग, द फास्टिंग दैट यू कैन डू इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बॉडी, for your immune system and everything, once a month if you can, it's very hard to do for 48-hour fasting, and once a quarter, once every 3 months you do a 72-hour। अगर आपने 48 और 72 आवर डाइट किया, आपने कुछ नहीं खाया, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, आप नॉन कैलोरी चीज़ें खा सकते हो लेकिन इसमें कोई कैलोरी ना हो, लेकिन आपका फास्ट ना टूटे, आप पानी पिए, आप ब्लैक कॉफ़ी पिए या ब्लैक टी पिए, लेकिन कोई मसला नहीं है उसका। मगर जो 24 आवर्स के बाद जो आपके जो स्टेम सेल्स होते हैं वो जो है आपके एक्ट करना शुरू हो जाते हैं, आपके जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो जी रहे हैं खाने के ऊपर, तो हम जितना खाना खाते हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, उनको हम ताकतवर बना रहे हैं, उनकी आर्मी को और बड़ा कर रहे हैं, और हमारे जो गुड सेल्स हैं लेकिन जिनको खाना नहीं चाहिए वो लोग उसको मार देते हैं फिर। सो आपके बैड बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज, अब थे दोनों ऐसे, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गया, अब बीमारी आएगी तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम है ही नहीं, एक छोटा सा दरवाज़ा को लात मार के आप खोल दोगे, लेकिन अगर आपने खाना कम खाया, आपने शुगर और ये सारी ग्लूटेन और सारी चीज़ें हटाई, तो आपका जो इम्यून सिस्टम बिकम्स लाइक अ वॉल, लाइक अ रॉक,
उसको अब कोई भी नहीं आगे आगे हटा सकता, लेकिन देन इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आप ये देखा होगा कि बहुत से लोग सिक होते ही नहीं है, और होते भी हैं तो फ़ौरन ठीक हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन देयर माइंड सेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है, राइट. उनकी स्लीपिंग हैबिट्स आर गुड, लेकिन स्ट्रेस लेवल्स आर लो रहते हैं. एक्सरसाइज ज़रूरी है. यू मस्ट एक्सरसाइज 20-30 मिनट्स, लेकिन 3 to 4 times a week रहते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर ब्लड फ्लो भी चलता रहे. वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू. नॉट यू डोंट वांट टू एक्सेस वॉकिंग इधर, बिकॉज आपके नीज के अंदर भी आगे जाकर प्रॉब्लम आ सकता है. जस्ट इनफ टू गिव योर सेल्फ रिजुविनेट, आपकी बॉडी जो है ना चलती रहे, लेकिन दैट्स इट. Just that's it. अच्छा, towards the end, what are some of your short-term goals or long-term goals for Infinite Wellness as well? And आप अपने लिए अगर देखते हैं, देखिए अभी इस वक्त मुझे जो है लेकिन ना मेरी 7 countries की मेरा ये ट्रिप है, लेकिन ना which I've done about 3 or 4 times before as well. I have a lot of doctors that are looking to ask us to join the Infinite Test, like where bring the lab to Australia, to Saudi Arabia, to Doha, to other countries. My goal is not to bring labs everywhere. The lab has to be in US. We will collaborate with them. We'll collect the test, like I told you about the finger prick with the protein card. We'll put the blood on there. We'll send it to US. Because वहाँ पे US के I can control the standards of the test rather. It's going to be very difficult for you to maintain वो सारी uniformity. I cannot vouch for something rather that's not been done under compliance rather. क्योंकि यूएस के अंदर कंप्लाइंस इतना ज़्यादा है, लेकिन और वी हैव एक्स्ट्रा कंप्लाइंस ऑफिसर्स ओवर देयर इन माय होल टीम दैट वी मेक श्योर दैट वी आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स rather, right? So make sure the efficacy and accuracy of the test is very good. Like I said, 100% is very hard to get 5 years in a row. So that's all. Like I said, we don't have any sales team or anything like that. The first 4 years what we concentrated on was this. Then make sure the turnaround time is good. हम आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट दें, हम आपको जो है कस्टमर सर्विस बेस्ट दें, और अभी जब प्राइस है उसको हम लोग मेंटेन रखें. आप मुझे बताया कि हमने 2019 में लैब खोली है. 2020 के बाद सारी चीज़ें डबल हो चुकी हैं. बाकी समय तो ट्रिपल भी हो चुकी है, 4 टाइम भी हो चुकी है. हमारी प्राइस वही की वही है. वी आर नॉट चेंज द प्राइस बिकॉज वी आर अ पीपल कंपनी, वी वांट टू मेक श्योर पेशेंट टेक एडवांटेज ऑफ इट. एंड दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड विद इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग. हमने इंश्योरेंस से बात की, उन्होंने हमें अपने पैनल में लिया, उनको लगा कि ये वाकई में कोई अच्छी चीज़ है. सो लाइक राइट नाउ विद 30,000 पेशेंट्स डन and hopefully 20,000+ patients this year will be inshallah going very strong. And we have in our schedule to do about 15 countries this year. We'll have offices in 15 countries. We already have 5 countries right now, but we're going to have 15 countries more. So we'll have 20 countries total by the end of this year, inshallah. Okay. Thank you so much, Nick, for being part of this podcast. Absolutely. And that was a very knowledgeable podcast, in fact. My pleasure. I hope people got some awareness out of it. No, absolutely. And in case if we have missed something out, you can definitely comment on this podcast if you are watching this on YouTube or if you are watching this on any other platform. We are definitely going to try to make some short clips from this podcast as well, ताकि आपको जो कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं लोगों के, उसके लिए हम करेंगे. एंड विद दैट यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू निक एज वेल. आपको सोशल मीडिया पे ढूंढना आसान है? बिल्कुल जी, हमारी है इन्फिनिट वेलनेस लैब्स के नाम से है, जो यूएस के अंदर है, और हमारी है इन्फिनिट वेलनेस पीके. यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा इधर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो आपके जो एंजाइटी के लेवल्स हैं, लेकिन इट्स गॉन वेरी बिग राइट नाउ एंड हैज़ अ वेरी वेरी बिग रिलेशन विद फूड अदर. तो आपको जो कोर्टिसोल लेवल जो आपका जो ऊपर जाता है, बिकॉज सर्टेन फूड्स दैट यू आर ईटिंग दैट योर बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग. ठीक है ना. तो मैं आपको खाली एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरी एक एंट है, लेकिन शी इज़ इन इस्लामाबाद. शी इज़ 65 years old राइट नाउ. वो 30 या 32 की ईयर्स की एज से उनको डिप्रेशन, एक्सट्रीम डिप्रेशन था. ठीक है ना. तो मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा उनके बारे में. आई बीन इन यूएस फॉर लेस दैन मेनी ईयर्स राइट. तो जब मैं एक दफ़ा यहाँ पे आया था तो मुझे थोड़ा पता चला था, लेकिन उनको ऐसा है, तो मैंने उससे बोला कि आप मेरा टेस्ट करवाएं, आप कराची आएँ, मेरा टेस्ट करवाएं. बहुत समझाने के बाद वो आई, उन्होंने टेस्ट करवाया. हमारी डाइटिशियन ने उनको पूरी गाइडेंस दी, लेकिन उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी, लेकिन जो सारे सेंसिटिव फूड थे वो निकाले. Was she utilizing something, कोई ऐसी चीज़ जो कि डिप्रेशन को? Just all healthy food. Everything रहता, लेकिन ज़्यादातर उनकी ब्रेड बहुत थी, लेकिन उनका ग्लूटेन हमने सारा हटवाया. लेकिन and once we did that, there you won't believe that after 35, 33, 34, 35 years, she's not taking the depression medicine anymore. She's been taking it for 30 years plus. And she doesn't have that stomach issues that she used to have, and she has a good sleep right there. वो मुझे रोज़ हमेशा मुझे हर हफ्ते हर महीने मुझे कॉल करती है, मुझे टेक्स्ट मैसेज मुझे दुआएं देती है कि काश मुझे ये चीज़ जो है 30 साल पहले पता होती, अगर मैंने ये टेस्ट करवाया होता. decades waste नहीं होते. Exactly. लेकिन also my idea is अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप दूसरों को भी बताएं, ताकि आज की तारीख में जो कोई यंग एज में है या
कोई भी एज में है, लेकिन वो डिप्रेशन से कुछ जा रहा है, तो दिस हैज़ अ बिग रिलेशन. आप सिर्फ 30 मिनट को कॉल करें, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी वुड लव टू गाइड यू एंड गिव यू द कंसल्टेशन, लेकिन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज, ताकि आप उसको देख सकें और पता कर सकें कि कितनी बड़ी चीज़ है. और आपको लगे सर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, विल स्टिल गाइड यू लाइक टू व्हाट वी हैव सीन that has helped people, we love to tell that. Thank you yes. Once again, and with that, this is Muse Harrison signing off, and for sure, if you want something similar जिसको हम केटर कर सकते हैं, सो हम आपका शायद दोबारा टाइम लें निक भाई. Absolutely. आपसे इसके ऊपर मजीद, क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो summarize it into one podcast. Yes, there's a lot more. Yeah, a lot more to come. And जो end में हमने बात की डिप्रेशन के हवाले से, this is one of the major issues faced by people nowadays as well. इसके ऊपर मजीद डिटेल में बात करेंगे. I'll see you in another podcast. Till then, take care.